So I will start with little bit about heterogeneous equilibrium. I think this is lecture number 6. So we are going to write, let's say like this: H2O liquid is going into H2O gas. Okay. So this is pure liquid. The activity of pure liquid is going to be 1, right? Anyway, this H2O liquid is converting into H2O gas over here. Now, if I have to write what is the Kp over here, then Kp is nothing but what is going to happen? Pressure of H2O, right? And this activity is going to 1. So this is simply the pressure of H2O. Now this pressure of H2O is nothing but vapor pressure, because equilibrium condition means saturated condition, right? Remember, this equilibrium is going to be in closed container, right? Right. So in closed container, equilibrium means what is going to happen? Equilibrium means saturated condition, right? So this pressure of H2O is nothing but vapor pressure of H2O. Okay. So do you have any problem in this part? Now, since I have already told you Kp is a function of temperature, that's why vapor pressure, or you can say saturated vapor pressure, which is commonly called as vapor pressure. Okay. The vapor pressure is also a function of temperature. So we can write, since Kp is a function of temperature only, hence vapor pressure of water is function of temperature. क्योंकि ये तो हमेशा इसके बराबर ही है. For this equilibrium, Kp हमेशा इसके बराबर है. So we can say the vapor pressure is function of temperature only. Then this part I have already covered in gaseous state. I'm just trying to relate those two concepts. ठीक है, तो एक तरह से रिकॉल हो रहा होगा आपको. Vapor pressure is only a function of temperature. अच्छा, for this reaction the delta H is, है ना, for this reaction what is the delta H? Positive. Yes, it is an endothermic reaction. When you will heat, the liquid is going to convert into vapor, right? So if this delta H is positive, since this reaction is endothermic, hence on increasing temperature, Kp, or you can say vapor pressure of water, will increase. And that's what happened. If you are going to increase the temperature, तो vapor pressure बढ़ता जाएगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके वो कितना हो जाएगा? On earth, that is going to be 1 atm. That's why 100 degree Celsius is going to called as boiling point. जिस पॉइंट पे या जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, उसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ स्टीम या फिर वेपर प्रेशर इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. So on increasing temperature,
homogeneous equilibrium I have already done, I think, है ना. So on increasing temperature, है ना, Kp and vapor pressure of water is going to increase, and on decreasing temperature, Kp or vapor pressure of water will decrease. ठीक है. Now, if I am going to relate, है ना, relation between vapor pressure and temperature, if we are going to find, so we know, है ना, this is from equilibrium constant, or you can say from want of equation, right? Log K2 by K1 is nothing but delta H by 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2, right? This is, we have seen. So similarly, we can say, similarly we can say log, over here K is nothing but vapor pressure at T2 temperature. So that is nothing but, we can write log P2 by P1 is nothing but delta H by 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2. So this is the variation, how the vapor pressure of water is changing. Enthalpy here, over here, what is this delta H? Delta H is enthalpy of vaporization, right? So we can calculate the vapor pressure. अगर हमें एक vapor pressure पता है, then we can calculate what is the vapor pressure at different temperature. तो हमें एक vapor pressure पता है, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस में, we already know 760, so we can compare and then we can solve. सही है, देख लो इसे. सेकेंड पार्ट ऐसे लिखा कि K is nothing but vapor pressure of water, तो K2 is nothing but P2. यहाँ P2 and P1 क्या है? Vapor pressure. Okay, so this equation is nothing but called as Clapeyron equation.
Okay. Now let's say another example I am saying. We are having CuSO4, let's say dot 5H2O solid, which is going into CuSO4 solid plus 5H2O. This is another example. Here it is gas. ठीक है, मान लो ये डिहाइड्रेशन हो रहा है at temperature T1 whatever. Now in this reaction, है ना, what is going to be Kp? So for this reaction, for this equilibrium, what is going to happen is that Kp will be pressure of water at whatever temperature, और वहां पे stoichiometry क्या है 5, so this is going to be 5. Now be careful in one more thing कि जैसे just assume it कि मान लो कोई टेम्परेचर है और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लेट्स से दिस इज योर सॉलिड है ना, CuSO4 जो भी 5H2O ये रखा हुआ है एट योर रूम टेम्परेचर व्हाटएवर, ठीक है। अब यहाँ से ये है ना, ये राइट, दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट, तो ये वेपर बन रही है राइट. So CuSO4 solid is converting and some vapor is coming out. मान लो this is let's say close, ठीक है, container. Now whatever is the pressure over here, that is going to determine, whatever the pressure is going to build over here, that is going to determine कि भाई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में. कैसे? जो नॉर्मल अपने रूम टेम्परेचर पे, जो रूम टेम्परेचर पे या फिर एटमॉस्फेयर में, नॉट रूम टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर में जो वाटर का प्रेशर है दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर. देखो अभी आपको ये सबको पता है कि ह्यूमिडिटी है प्रेजेंट अपने एटमॉस्फेयर में, ठीक है. सैचुरेटेड कंडीशन तो है नहीं कि हम, वी आर नॉट गोइंग टू से कि 100% ह्यूमिडिटी है. So that's why that vapor pressure is partial pressure of water, that is not saturated pressure. Are you able to understand this? कि जो अपने एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स का प्रेशर आएगा दैट इज पार्शियल प्रेशर, दैट इज नॉट वेपर प्रेशर. समझ में आई मेरी बात? ठीक है. नाउ लेट्स से जस्ट अज्यूम कि वो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर है at the temperature, any temperature, room temperature of let's say, वो मान लो 24 mmHg है let's say, ठीक है. दिस इज पार्शियल प्रेशर. और वेपर प्रेशर लेट्स से वाटर का है 30 mmHg, ठीक है. वाटर का वेपर प्रेशर है 30 mmHg, राइट. तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला मैंने बताया. व्हाट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी? So this is relative humidity is nothing but, this is the formula you can write, is nothing but partial pressure of water at temperature T divided by vapor pressure of water at temperature T.
So at the same temperature we are checking what is the ratio over here. So let's say if I am going to say कि अगर room temperature temperature is not important right now, दोनों same temperature पे हैं. So let's say in any condition this is having 24 mmHg और जो vapor pressure है that is given 30 mmHg, तो फिर इनका रेशियो क्या हो जाएगा, इससे हमें मिलेगा 0.8 into 100 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिलेगी. ठीक है, राइट. दिस इज गोइंग टू बी वेपर प्रेशर ऑफ वाटर. दिस इज व्हाट वी हैव बीन गिवन. ठीक है, नाउ अज्यूम कि ये जो प्रेशर, अच्छा ये जो प्रेशर है ये क्या वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है? नहीं, ये वेपर प्रेशर नहीं है, ये कोई H2O लिक्विड और गैस के बीच में इक्विलिब्रियम नहीं चल रहा है, राइट. सो दिस इज नॉट saturated condition between liquid and gas. This is simply whatever the pressure of water vapor is happening over here. So that is not, है ना, हाँ, that is partial pressure. So this is another partial pressure. Now the question is, जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो, कि मान लो ये जो प्रेशर है वो निकल के आया 16 mmHg, मान लो, है ना, whatever kp है, kp के हिसाब से ये जो प्रेशर निकल के आया वो आया 16 mmHg. मतलब ये जब भी इक्विलिब्रियम ये हो रहा है उस टाइम पे ये 16 mmHg, है ना, प्रेशर यहाँ पे निकल रहा है, राइट. एटमॉस्फेयर में क्या है, 24 mmHg. 24 mmHg का मतलब क्या हुआ कि ज्यादा वाटर है. 24 mmHg का मतलब क्या हुआ, वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है 16 से. एंड दैट मीन्स क्या होगा कि ये पानी का वेपर प्रेशर 16 mm है और एटमॉस्फेयर है, पानी ज्यादा है, तो रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन या फॉरवर्ड डायरेक्शन? अगर मान लो हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रिएक्शन किस में जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन. मान लो हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, कुछ बढ़ा रहे हैं और ये 16 से पहुंच गया मान लो 32 mmHg, है ना, लेट्स से 32 mmHg हो गया. अभी प्रेशर है आपका 24 mmHg, ठीक है, एटमॉस्फेयर पे, सॉरी वॉट एवर टेम्परेचर पे, है ना. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर का जो जो प्रेशर है वो ये है. नाउ व्हाट विल हैपन, दैट मींस कि भाई 32 होना चाहिए, एटमॉस्फेयर में 24 ही है, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी. ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे कभी कभी. आर गोइंग टू गिव यू लेट्स से pressure, maybe they are going to give you vapor pressure and relative humidity, then they will ask कि भाई क्या होगा बताओ, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी. ठीक है, इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं, इससे आपको थोड़ा समझ आ जाएगा, राइट. तो आई हैव टू फाइंड, एक मिनट ये सब हटा देता हूँ. then you will get more clarity. yes loving. क्या करना है हमको, क्या करना है, राइट. हैव टू फाइंड अ क्वेश्चन. आई थिंक so this example is given in your books, है ना. example number 13. I will open, wait, मैं वहीं से समझा देता हूँ, because it will save a lot of time. वेट सोहम, वेट अभी समझ में आएगा, रुको.
ये केवल आई थिंक नहीं, ये नहीं है। वेट, अभी वेट खोलते हैं, ओपन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13, जिनके पास बुक्स हैं दे कैन चेक, है ना, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। Okay, so this is question is given under what pressure condition be effervescent, मतलब ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये that is going to convert into vapors, है ना, at 25 degrees Celsius, and how good a drying agent is at the same temperature, right? So what they are saying, whether this reaction is going to be in forward direction or not, Kp is given over here, ठीक है, some 25 degrees Celsius. The only thing is they are saying here 2H2O. We have written 5H2O for this reaction. So according to reaction, you will check. You know, ये vapor है, or you can say gas. So what is going to happen here? Kp is nothing but pressure of water, जो भी यहाँ से आ रहा होगा, का square. And the vapor pressure of water is given as 23.8 mm of Hg. ठीक है? Now, this is the vapor pressure of water is given. So what we have to first calculate is what is the pressure of water coming from here, है ना, जो भी condition होगी इसके हिसाब से. So full sand salt is one that loses H2O brought in contact with atmosphere. So they are saying कि ये water lose कर रहे हैं, and then they are calculating from here you can see. So they are calculating over here, this is the pressure in ATM, and they have multiplied by 760. So this has come around 7.92 mmHg. ठीक है. Now, so this condition 7.92 mmHg is given. So this condition we have to compare कि ये जो pressure दे रखा है हमें, whatever the pressure is given, इससे ये वाला pressure ज़्यादा है या कम है. So obviously what is this value is less, है ना. यहाँ पे जो भी ये water vapor के कारण जो pressure बन रहा है वो क्या है, कम value है. So they are saying कि this is, है ना, यहाँ पे ये 23.8 is going to be greater than 7.92. then what will happen, reaction will proceed in backward direction. इसका मतलब क्या हुआ, forward direction में reaction नहीं हुई, ना. whatever the pressure is coming over here, ठीक है, इस Kp से जो भी pressure आ रहा है वो pressure अभी यहाँ पे humidity वगैरह दे नहीं रखी है. That's why we are going to compare directly with vapor pressure. If relative humidity would have been given, then we will think कि atmosphere में क्या होगा, उसके हिसाब से we are going to say कि what is going to happen, है ना, reaction. तो जो भी यहाँ पे pressure दे रखा है उससे हम compare कर लेंगे. So this value is going to be less than, है ना, this value is less than this one. तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि atmosphere में सैचुरेटेड कंडीशन में क्या होगा, वाटर वेपर ज्यादा होगी, एंड दैट्स व्हाई क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी. अब इसी को थोड़ा सा और इन्होंने समझाया. Thus not act as a effervescent and on the contrary will absorb moisture. Absorb moisture का मतलब क्या हुआ, यहाँ से जो वाटर वेपर निकला वो तो 7.92 mmHg निकला, एक्चुअली एटमॉस्फेयर में कितना है 23.8, राइट. तो what will happen, ये इसको एब्जॉर्ब करके बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट होगी. एंड दे आर सेइंग कि अगर मान लो ये, सो व्हाट इज दे आर सेइंग कि अगर मान लो इसमें हम अंदर बात करें कि व्हाट इज गोइंग टू बी ह्यूमिडिटी इन दिस क्लोज कंटेनर, ये जो क्लोज कंटेनर है इसमें क्या होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी. तो वी कैन सी व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर ओवर हियर, what is the vapor pressure over here, we can into 100 we can do. So this is the relative humidity in the closed container. तो दो बातें हैं, एक तो है relative humidity
जो भी पार्शियल प्रेशर है उससे डिवाइड करो वेपर प्रेशर को इनटू 100 कर दो। एटमॉस्फेयर की पूछ रहे हैं, एटमॉस्फेयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी बता देंगे क्लोज कंटेनर, बिकॉज दिस रिएक्शन इज हैपनिंग इन क्लोज कंटेनर। अगर मान लो तो उसकी अगर हमें यहाँ पे देखनी है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, देन वी कैन टेल ओवर हियर। ठीक है, अब इसमें पूछा गया था whether this reaction is going to be forward or backward, so simply we have to check with Kp what is the pressure is coming over here. We have to compare, and by this comparison we are saying whether the reaction will happen in forward or backward direction. Understood? सर हम्म सर बट क्यू को नहीं कंपेयर कर सकते हम इसको? Q को मतलब किससे कंपेयर करेंगे? यहाँ तो ऑलरेडी ये कह रहा है कि बताओ ये अगर एक, जैसे ये कह रहा है कि अगर ये इक्विलिब्रियम में होता है ना तो प्रेशर इतना बनता। सर क्योंकि जब Q के इक्विलिब्रियम से कम होता है तब बोलते हैं ना हम कि फॉरवर्ड है रिएक्शन, तो यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते। यहाँ पे हमें Q जैसे अगर निकालना है ना, ठीक है, तो हमें प्रेशर पता करना पड़ेगा। अभी तो हम इक्विलिब्रियम पे ही प्रेशर निकाल सकते हैं ना। यस सर। मेरी बात समझो, ये कह रहे हैं जब ये पूरा ऐसे क्लोज कंटेनर में अंदर होता लेट्स से, है ना, यस और सर। जब इसमें इक्विलिब्रियम आ रहा होता तो इतना प्रेशर आता, 7.92 mmHg ये प्रेशर आता। यस सर। जैसे ही इन्होंने इसको ओपन एटमॉस्फेयर में रखा, है ना, जैसे ही इन्होंने ओपन एटमॉस्फेयर में रखा, अब ये कह रहे हैं अब बताओ रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। ओके, ठीक है, तो खोलने के बाद मतलब। अब एक तरह से क्या है कि ये एटमॉस्फेयर में तो इतनी वेपर है, यस सर। ठीक है, और यहाँ पे तो इतना वेपर प्रेशर के कारण एक बन रहा था प्रेशर, यस तो सर। ये ज्यादा है, then what will happen, backward direction में रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी। यस सर, समझ This is गए। what they are saying. यस सर, थैंक यू सर। तो ये this is I hope कि सबको समझ में आ गया। And what is the relative humidity? If anyone is asking the question, then partial pressure divided by vapor pressure into 100, ठीक है, वो relative humidity हो जाएगी। तो इसको अभी हम डिस्कार्ड कर देंगे। Now let's say, so these are the questions related to, एक मिनट, these are the questions related to vapor pressure and humidity, ऐसा कुछ काम आएगा, then we are going to say okay into 100, right? Okay, yes. हेलो सर। सर एफ्लोरेसेंस एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्या रिलेशन है? नहीं, what they are saying whether see एफ्लोरेसेंस का मतलब केवल इतना है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे दो टर्म है, एक तो है डेलिक्विसेंट, है ना, दैट इज लाइक absorbing moisture or hygroscopic in nature, है ना, absorbing moisture. Another one is losing moisture. So simply if we are going to see the reaction on the basis of that, we can say कि whether the reaction is happening in forward direction or backward direction, ठीक है। yes, है ना, तो मतलब क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता, कहा जा सकता था बताओ ये जो सॉल्ट है वो डेलिक्विसेंट है या फिर दिस सॉल्ट इज गोइंग फॉर एफ्लोरेसेंट, तो क्या हो रहा है वो हमें बताना है। इसका मतलब इनडायरेक्टली दे आर आस्किंग वेदर द रिएक्शन इज हैपनिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट्स इट। ओके सर। सर एक बार एग्जांपल पे जाइए ना, वो था जो, एक मिनट मैंने इसको क्लोज किया है। हाँ बताओ ना, उसमें दो तीन बातें ही थी। हाँ सर उसमें लास्ट स्टेटमेंट में लिखा था एक बार, सर द सॉल्ट विल बी एफ्लोरेसेंस, उसके बाद एंड में और इफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज बट ऑन 33%, कॉन्ट्रेरी ये ना, नहीं उसके नीचे absorb moisture from atmosphere under given condition, the salt will fluoresce only when a dry day, dry day का मतलब क्या है, जब एटमॉस्फेयर में, अब एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर कम हो जाएगी, ड्राई डे का मतलब क्या है, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के कारण या जो भी है आपकी एटमॉस्फेयर में वाटर कंटेंट कम रहेगा, ठीक है। सो व्हेन द एक्वस टेंशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज लेस देन, अभी मैंने क्या बोला, मैंने कहा यहाँ पे हमारे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी दे नहीं रखी है उन्होंने, हम वाटर वेपर से ही, है ना, कंपेयर कर ले रहे हैं, है ना। यहाँ पे वैसे तो लिखा होना चाहिए था प्रेशर इन एटमॉस्फेयर, है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इन एटमॉस्फेयर इज दिस, ठीक है।
So because we don't know कि relative humidity कितनी होगी, so that's why we are comparing like this. But अगर मान लो relative humidity दे रखी होती भाई एटमॉस्फेयर में, तो देखो भाई ऐसा है 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, इसका मतलब ये होगा कि एटमॉस्फेयर में अगर 30 से देखें तो 15 mmHg है. देन वी विल कंपेयर अकॉर्डिंग टू दैट. हो सकता है कभी बहुत ड्राई डे आ जाए, 20% ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो, तो एटमॉस्फेयर में कितना होगा, 6 mmHg वेपर प्रेशर आएगा. ठीक है, वाटर का. देन वी आर गोइंग टू से 7.92 इज ग्रेटर देन 6 और 7.92 इज लेस देन 6, है ना. अकॉर्डिंग टू दैट वी आर गोइंग टू से. सो दिस इज सेइंग कि the salt CuSO4.5H2O effloresces only a dry day when the aqueous tension or partial pressure of moisture is less than 7.92. ठीक है. और फिर उन्होंने बोला है if, और क्या बोल रहे हैं कि ये जितनी ह्यूमिडिटी आ रही है ना, इससे थोड़ी कम होगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी. रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर इन एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा 7.92 से. बस यही कह रहे हैं. ओके, समझ में आया? तो लॉजिक सिंपल है. अगर मान लो एयर एटमॉस्फेयर में वाटर ज्यादा होगा, इक्विलिब्रियम प्रेशर से, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से जो प्रेशर आ रहा है उससे, तो हम कहेंगे भाई वाटर ज्यादा है, मतलब रिएक्टेंट ज्यादा है, बैकवर्ड रिएक्शन होगी. अगर वेपर प्रेशर कम होगा तो हम कहेंगे अभी क्या है, ये रिएक्टेंट कम है, और बनाओ भाई, है ना. अभी इक्विलिब्रियम करने के लिए आगे और रिएक्शन हो सकती है. तो according to that we can say कि whether the reaction will shift in forward or backward direction. Clear है सबको? Then say okay. नहीं है clear, then again you can ask. सोहम हो गया clear? ठीक है. Now ये तो बात हो गई. इससे रिलेटेड देखो एक एग्जांपल और है, 12th पे है, वो आप खुद से सॉल्व कर लेना. 12 एग्जांपल. सो एग्जांपल हमेशा सॉल्व करने हैं. एक बार क्या होता है, उनमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दे रखे होते हैं. सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ वी आर मूविंग टू ईच एक्टिविटी. Now, Lee-Chatelier principle is simply saying कि whether the equilibrium is going to shift in which direction to attain a new equilibrium. ठीक है, to attain a new equilibrium. तो एक बार हम equilibrium को disturb करेंगे तो ऐसा नहीं है कि फिर से equilibrium आएगा, फिर नहीं आएगा, फिर से equilibrium आएगा, थोड़ी देर बाद आएगा, है ना. और वहां पे जो concentration का ratio होगा, है ना, that is going to be different. That is going to be a new equilibrium state. ठीक है. So let's say, what is the meaning of that Lee-Chatelier principle? It is simply saying कि देखो, अगर हम practical life में भी देखें, अगर हम कोई चीज अच्छी खासी चल रही है ना, everything is fine, and if we are going to change those things, तो क्या करोगे तुम? जैसे मान लो तुम्हारी अच्छी खासी लाइफ चल रही है मस्त, and suddenly what I did is I change your timetable or I have changed something. Would you like it? No, obviously no, na. So that means you will resist it. You will try to do something so that the effect of those changes is going to be minimized. ठीक है, right? So you will do those type of action जिसके कारण ये normal है, मतलब, है ना. This is related to daily life. तो we are trying to do so those things जिनसे वो effect कम हो जाए, right? So this is exactly happens in reaction. If we are going to, let's say, in an equilibrium, if we are going to change anything, let's say I'm not writing the statement, so I'm just explaining कि मैंने अभी तक तो ये समझाया है क्यों के बेसिस पे, है ना. आपको क्यों के बेसिस पे समझाया था कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट डालेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट होगी और प्रोडक्ट डालेंगे तो बैकवर्ड में होगी. बट हो क्या रहा है, जैसे ही मैंने यहाँ पे मान लो पहले ये इक्विलिब्रियम पे है, अभी मैंने 2 मोल ए के और डाल दिया है ना. I have added 2 extra moles, है ना, 2 moles I have added. तो एकदम से reactant बढ़ गया. Now this reaction is trying to minimize the effect by consuming it. मतलब ये जो 2 मोल है ना, इसको खत्म करना है उसको. So that's why it can minimize the effect, है ना.
उसको रजिस्ट करना है, 2 मोल आए, जो चेंज आया, दिस इज द चेंज दैट वी हैव increased the concentration. What reaction is trying to do? Reaction will shift in that direction which is going to oppose it. कि जो आपने किया है उसको अपोज करना है, तो क्या होगा, अगर आपने 2 मोल डाले तो रिएक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, सो दैट हम इसकी कंसंट्रेशन को जो 2 एक्स्ट्रा मोल डाले हैं उसको कम कर सके. सो व्हाट हैपेंड, रिएक्शन हैज शिफ्टेड इनटू फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना. तो रिएक्टेंट डाला, फॉरवर्ड डायरेक्शन. ऐसे ही अगर मान लो इसके 2 मोल डाले होते तो क्या होता, है ना, रिएक्शन विल ट्राई टू मिनिमाइज इट्स कंसंट्रेशन, सी की कंसंट्रेशन को कम करने की कोशिश करती है, बढ़ गई है, देन रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो एक तो हमने क्यू से समझा हुआ है पिछली क्लास में, है ना, कि अगर रिएक्टेंट डालेंगे तो क्या होगा, और दूसरा है ये लॉजिक है. ठीक है, तो अभी आप एक स्टेटमेंट लिख लो, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल. देखो, if we will try to change or we will try to disturb the equilibrium state, according to Lee Chatelier principle, if we try to disturb the equilibrium state, the equilibrium will be shifted. The equilibrium will be shifted in that direction which will चलो फिर से लिख, ठीक है. Okay, so what I said is, according to Lee Chatelier principle, if we try to disturb the equilibrium, in bracket you can write by changing pressure, temperature, concentration, volume, etc. है ना, by changing, in bracket you can write by changing pressure, concentration, temperature, volume, etc. bracket close. We try to disturb the equilibrium in bracket, now after bracket comma, the equilibrium will shift in that direction which will minimize the effect of change, which will minimize the effect of change, so equilibrium will shift in that direction which will minimize the effect of change, or in bracket you can write reaction will oppose the change, will oppose the change, and equilibrium will be shifted in that direction which will minimize its effect. So whatever you feel like, है ना. So I have said in bracket, the reaction will oppose the change and equilibrium will shift in that direction which will minimize its effect. ठीक है ना. And after that you can write, and a new equilibrium state will be established. New equilibrium state will be established का मतलब क्या है, मैं फिर से एक सिंपल से एग्जांपल समझा रहा हूँ कि मान लो ये लिखा हुआ है A gives let's say B, right? So let's say at some let's say temperature, the equilibrium concentration is let's say 1 and 2. Just imagine. Okay. So we can say the Kc is nothing but 2. Simple. What we did is we have added let's say 2 more moles of A. So now
Now, this is initially at equilibrium. So we are having 1 and 2 moles. So Kc is 2. Now we have added 2 more moles, right? So we are going to say now what will happen? The equilibrium will be disturbed by adding 2 equilibrium. Just listen, okay? Do not write. By adding 2 moles of A, what will happen? This is going to be now at some time t. This is going to be 3 moles and this is going to be 2. So you can see the Kc is not 2 anymore. So what will happen? This is going to be some x moles are going to be dissociate and x moles are going to be formed. So we can say 2 plus x divided by 3 minus x is equals to 2. And then you can solve 2 plus x is nothing but 6 minus 2x. So 3x equals to 4, then x equals to 4 by 3. So now you are going to have 3 minus 4 by 3 and this is 2 plus 4 by 3. This is a new equilibrium. So you can see the concentration has changed. Initially, we are having 1 and 2 moles at first equilibrium. क्या हुआ जब you have disturbed the equilibrium, a new equilibrium has established. Again, if you are going to see the Kc is remain same. तो ये 2 ही आएगा. इतनी बात समझ में आ गई. मैंने वॉल्यूम के बारे में नहीं बोला, मैंने डायरेक्ट कंसंट्रेशन लिया है. ठीक है, तो दैट मीन्स कि मैं वॉल्यूम 1 लीटर ले रहा हूँ, राइट? ठीक है. सो this is what is happening. Equilibrium state is changing. ठीक है ना? After doing all those change, what will happen? A new equilibrium will be established. So let's write one by one. है ना? अब ये समझ लेते हैं कैसे किधर चेंज होगा, है ना? How the equilibrium will shift. So we can easily understand with the help of Q के बेसिस पे बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं. तो पहला लिख रहे हैं फर्स्ट, effect of concentration change. Effect of concentration change. Here you can write addition of reactant, or you can say removal of reactant, or you can say addition of product, or you can say removal of product. So any case is possible. So that's how we are changing the concentration. Okay. Now, just an example, we are going to say A plus BB gives CC. So what is going to be initial equilibrium? Okay. At initial equilibrium, if we have added, at initial equilibrium, K equilibrium is nothing but C is to power C. Simple भी लिख सकते हैं. Do not write A, B, है ना? Simply just make it simple. In fact, make it a little bit more simple. Okay. So C divided by A and B. So if we are adding reactant or removing product, Q will decrease. Initially we should write initially at equilibrium, this K equilibrium is nothing but Q. Okay? If we are adding reactant or removing product, so we have added reactant or we have removed the product, right? So Q has decreased, Q is going to decrease, and now Q is less than K. ये कंपैरिजन समझ में आया कि पहले जो Q की वैल्यू थी वो K इक्विलिब्रियम के बराबर थी, बट जैसे ही आपने कुछ रिएक्टेंट ऐड किया या फिर प्रोडक्ट हटाया तो Q की वैल्यू कम हो गई. Now Q की वैल्यू कम हो गई, then Q is less than K equilibrium, and that's why hence forward reaction.
So this is case 1. Case 2, if we are removing reactant or adding product, Q will increase, and now Q is going to be greater than K equilibrium. So whenever Q is greater than K equilibrium, then backward reaction. So backward reaction, that means equilibrium will be, a new equilibrium will be established when the reaction will shift in forward direction. ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने लग गई और एक नया इक्विलिब्रियम बनेगा आफ्टर सम टाइम. ठीक है, बैकवर्ड का मतलब क्या है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने लग गई है ना, फिर उसके बाद एक नया इक्विलिब्रियम आएगा. ठीक है, लॉजिकली तो बहुत आसान है, लॉजिकली मैं पहले ही समझा चुका हूँ. जो भी आप चेंज कर रहे हो उसको रिएक्शन अपोज करेगी. तो इफ यू आर गोइंग टू ऐड सम ए, रिएक्शन वांट्स टू कंज्यूम द ए, सो दैट्स व्हाई जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनने लग जाएगा. प्रोडक्ट ऐड करोगे, रिएक्शन वांट्स टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होने लग जाएगी. तो यू कैन रिलेट फ्रॉम हियर आल्सो. ठीक है, इतनी बात क्लियर है. इसमें ये हम पहले भी बता चुके हैं, सो आई थॉट कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. हाँ, इसमें एक बात याद रखनी, नोट. In case of heterogeneous equilibrium, ठीक है, chemical change है ना, chemical reactions. We are not talking about physical reaction है ना, H2O liquid से H2O गैस जा रहा है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं. Heterogeneous है ना, chemical reaction की बात कर रहे हैं. जैसे कहीं पे ये लिखा हुआ है, CaCO3 solid gives CaO solid plus CO2 gas, like this is given. ठीक है, नहीं, हाँ सॉरी, हम इसमें सब ले सकते हैं, फिजिकल भी ले सकते हैं, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम. ठीक है, सो इन केस ऑफ हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, लेट्स से दिस इज गिवन है ना. if we are adding 100 gram CaCO3 है ना, in which direction 100 gram CaCO3 at equilibrium, in which direction reaction will shift. बताओ भाई, in which direction reaction will shift to establish new equilibrium. Okay, so many people are saying forward, but there is a trick. See, what is the activity of CaCO3? 1. Whether you are having 100 gram or 500 gram, or you are having anything, the activity is not changing. So when you are saying Kp value or Qp, that is nothing but pressure of H2O. By changing CaCO3, whether the Qp has changed? So there is not going to be any effect. Whether you are going to add CaCO3 or you are going to add CaO, the equilibrium will not get affected. So answer is no effect. No effect on equilibrium. ठीक है, so by adding let's say any solid or liquid, let's say heterogeneous equilibrium की बात कर रहे हैं, right?
because their activity is one, so there is not going to be any effect on equilibrium. So be careful. ऐसा नहीं है कि बस आपने रिएक्टेंट देख लिया और बोल दिया कि फॉरवर्ड हो जाएगी, या बैक प्रोडक्ट देख लिया तो बोल दिया कि बैकवर्ड हो जाएगी, है ना. You have to be very clear, you have to be very careful कि उसमें लिखा क्या है ना. फिर से सुन लो. देखो भाई, इसका अगर मैं Kp लिखूंगा, है ना, if I am going to write as, I will write as Qp is not changing. If I am going to write Qp or Kp, है ना, so Qp which is equals to at Kp which is nothing but pressure of CO2 at equilibrium. Why? So you can see there is no term of CaCO3 in this expression, है ना. ये तो दोनों सॉलिड है, इनका तो 1 1 है, तो CO2 ही आएगा बस केवल. Now at equilibrium, so if we are changing Ca, है ना, changing concentration of CaCO3, Qp will not change. राइट. Qp चेंज नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? इक्विलिब्रियम चेंज नहीं हुआ, डिस्टर्ब ही नहीं हुआ. ये बात क्लियर हो गई सबको? कोई है ऐसा जिसको नई बात आ रही है समझ में? हाँ, अगर मान लो मैं ये कहता कि मैंने CO2 ऐड किया, रिमूव किया, देन व्हाट विल हैपन, फिर मैं उसी के हिसाब से देखता कि Qp क्या होगा. तो अगर मैंने CO2 रिमूव किया है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने लग जाएगी, ऐड किया है तो बैकवर्ड डायरेक्शन. सो इट इज बेस्ड ऑन कि CO2 क्या है, CO2 के बारे में. ठीक है ना. तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात और समझ सकते हैं कि Qp का एक्सप्रेशन भी पता होना चाहिए कंपेयर करने के लिए कि भाई हो क्या रहा है ना. ये तो हो गई कंसंट्रेशन की बात. अब चलते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर. इफेक्ट ऑफ प्रेशर के लिए मैं दो मेथड अगेन बताऊंगा, एक तो लॉजिक और एक ये मैथमेटिकल वन. Qp क्या है? मैथमेटिकल वन, है ना. आप पहले Qp निकाल लो, कंपेयर कर लो, राइट. सो देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना. बट थोड़ा लंबा मेथड है ना. तो हम पहले हम मैथमेटिकल वन समझ ले रहे हैं, फिर लॉजिक समझ ले रहे हैं. तो लॉजिक जल्दी से लग जाते हैं, है ना, तो आसान पड़ता है, राइट. सो इफेक्ट ऑफ प्रेशर समझते हैं. लेट्स से आई एम जस्ट राइटिंग ए रिएक्शन एग्जांपल. PCl5, let's say gas is converting into PCl3 gas plus Cl2 gas, let's say. एक्चुअली Qp वाला आसान है, मतलब तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना Qp कैसे आ रहा है. लॉजिक का मतलब ट्रिक काइंड ऑफ, नॉट द लॉजिक वन जो मैंने आपको बताया कि रिएक्शन अपोज करती है, दैट आई एम सेइंग. ठीक है अमित, समझ में आया? तो एक्चुअली कॉन्सेप्ट वो Qp वाला ही है ना, मैथमेटिकल वन. Step by step you can understand. So let's say this is the reaction. What will happen if I am going to say Kp, then it is nothing but pressure of PCl3, or let's say pressure of Cl2, pressure of PCl3 divided by pressure of PCl5. Now all these partial pressure can be written in terms of total pressure. सही है. What can happen is we can write total pressure के टर्म्स में. तो क्या होता है फॉर्मूला? Partial pressure is nothing but mole fraction, है ना, into total pressure. करेक्ट ना? टोटल प्रेशर का मतलब एट इक्विलिब्रियम जो भी प्रेशर आ रहा है ना, क्योंकि ये पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे है, तो दैट इज गोइंग टू बी टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम. सो व्हाट आई कैन राइट इज, आई कैन राइट Kp is nothing but xCl2 dot x PCl3 divided by x PCl5, ठीक है, into, है ना, P total
into P total डिवाइड बाय P total। सब मेरी बात समझ में आ रही है? कोई है जिसको ये बात नहीं समझ में आ रही है? हाँ ना कह के पता चलता है, राइट? आई एम इंटरेस्टेड इन नो, कोई कहे, है ना? यस तो ठीक है। सो P total is going to cut over here, तो यहाँ पे P total बच गया। Now this is very important. So Kp, can we say Kp is nothing but moles of Cl2 moles of PCl3 divided by mole fraction of Cl2 mole fraction of PCl3 divided by mole fraction of PCl5 into P total। Now ये तो मैंने एक तरीके से बताया। अब मान लो इसी रिएक्शन में अगर मैंने, है ना, एक जनरल रिएक्शन ली होती, if I would have written AA plus BB gives CC plus DD, तो हम कैसे लिख रहे होते हैं? Then we are writing, है ना, तो ये एग्जांपल लिख लिया, आप दूसरा लिख लेते हैं। So let's say जनरल केस लिख लेते हैं, है ना। अच्छा थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं। नाउ दिस इज इक्वल्स टू QP, इक्विलिब्रियम पे सब कुछ। अब सडनली आपने क्या किया? प्रेशर चेंज कर दिया। यू हैव चेंज द प्रेशर। सडनली आपने क्या किया? प्रेशर चेंज कर दिया। तो प्रेशर चेंज करने से Kp चेंज तो होगा नहीं, ठीक है, QP चेंज हो जाएगा, राइट, है ना। तो जैसे ही आपने प्रेशर चेंज किया, मान लो अगर मान लो आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो QP बढ़ जाएगा। QP नाउ इज ग्रेटर देन KP, बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अगर प्रेशर आपने कम कर दिया, मान लो मैं कहूं, है ना, दिस इज नथिंग बट, अगर मैं यहाँ पे लिख लूं, इफ वी विल इंक्रीज, है ना, प्रेशर, so QP is going to be greater than KB, correct ना? P total बढ़ेगा, so this is going to be, and that is backward. And if we will decrease pressure, है ना, QP is going to be less than KP, क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड। इतनी बात समझ में आ रही है पहले किसी की, फिर मैं जनरल केस दिखा रहा हूँ, बट ये बात समझ में आ गई कि मैंने यहाँ क्या लिखा। पहले मैंने KP लिखा, फिर KP से मैंने पार्शियल प्रेशर को टोटल प्रेशर के टर्म्स में लिखना चालू किया, और फिर हैव रिलेटेड के, तो अभी मैं मोल चेंज नहीं कर रहा हूँ, है ना, मोल चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो एट दैट इंसिडेंट जब मैं प्रेशर चेंज कर रहा हूँ, है ना, द मोमेंट मोल्स आर गोइंग टू बी सेम, प्रेशर आ रहा है, फिर जैसे जैसे प्रेशर हमने चेंज किया तो मोल फ्रैक्शन चेंज होने लग जाएगा, क्योंकि केपी तो चेंज होगा नहीं, तो ये दो फैक्टर हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये एक तरह से है कि जैसे मान लो अभी इक्विलिब्रियम चल रहा है ना, द फर्स्ट सेकंड whether the reaction will shift in forward or backward, the first second after the change, जैसे आपने प्रेशर बढ़ाया उसके अगले सेकंड में रिएक्शन फॉरवर्ड में गई या बैकवर्ड में गई, क्योंकि एक डायरेक्शन में चालू होगी उसी में होती रहेगी। So for that we are checking with the help of that first second we are saying कि अभी ये चेंज नहीं हुआ है, धीरे धीरे ये भी चेंज होगा, because Kp is going to remain constant, so this plus this and this is going to be, है ना, this into this is going to be constant, right? तो ये भी चेंज होगा, but the first second we are saying कि whether the reaction is shifting in forward or backward, so we can say कि QP बढ़ जाएगा, QP बढ़ जाएगा तो फिर, है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन मिल जाएगी। अरे भाई प्रेशर अगर कम कर दिया, सडनली मैंने प्रेशर कम कर दिया, व्हाट विल हैपन? द QP इज गोइंग टू डिक्रीज, QP is going to decrease, then what will happen? फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन होगी। प्रेशर बढ़ा दिया तो क्या होगा? QP is going to increase, बैकवर्ड डायरेक्शन होगा, ठीक है। मुझे पता है कि बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, मैं पहले से ही वो बता देता हूँ, है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि देखो ऐसा है कि ये P टोटल जब मैं बढ़ा रहा हूँ, है ना, जैसे ही मैंने P टोटल बढ़ाया, द फर्स्ट सेकेंड जैसे ही मैंने चेंज किया, मैं देखना चाहता हूँ QP क्या हुआ, क्योंकि जैसे ही मुझे पता चला कि फर्स्ट डिस्टर्ब होने के बाद फर्स्ट सेकेंड में जो इफेक्ट आएगा वही आगे होता रहेगा।
तो पी टोटल बढ़ा तो क्यूपी भी बढ़ गया। इवेंचुअली क्या होगा, आफ्टर सर्टेन टाइम ये मोल फ्रैक्शन के टर्म्स भी चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि केपी दिस इनटू दिस क्या है, कांस्टेंट है, राइट। सो जो भी ये रेशियो आ रहा है, राइट, दिस इज आल्सो गोइंग टू चेंज, so that the kp will not change, but we are talking about the first second after the change what happened, ठीक है। for that we are assuming कि ये constant रहेगा because we are not changing the moles, we are changing pressure, ठीक है। I think मेरी बात समझ में आ गई होगी सबको, जिनको डाउट है वो मुझसे पूछ लें, ठीक है। तो ओवर हियर वी हैव अंडरस्टूड कि भाई क्या होगा। अब थोड़ा लॉजिक मतलब याद करने के लिए समझ लेते हैं कि क्या होगा। सो व्हाट हैपेंड इज कि जैसे अब प्रेशर को ना हम रिलेट करते हैं मोल्स से। व्हाट वी आर डूइंग इज वी रिलेट प्रेशर विद मोल्स। तो थोड़ा यहाँ पे ये ट्रिक है, ये याद रखना कि इफ वी आर इंक्रीजिंग द प्रेशर दैट मींस नंबर ऑफ मोल्स आर इंक्रीजिंग, है ना। ये एग्जांपल ही है बेटा सौमिल, सुनो मेरी बात। अब मैं वो लॉजिक बता रहा हूँ जो जल्दी से लगाना है ना। ये तो आपको मैथमेटिकली मैं अभी फॉर्मूला बना दूंगा, उससे भी समझ में आ जाएगा, लेकिन जो जल्दी से लगाना है वो बता रहा हूँ। So I am saying, है ना, ये this is the trick or you can say hint part. Pressure is proportional to moles. So we are increasing pressure means increase means moles increase. अब भाई मोल्स इंक्रीज हो गए हैं और रिएक्शन को क्या करना है, मोल्स खत्म करने हैं। यहाँ पे एक मोल 2 मोल में कन्वर्ट हो जाता है, 2 गैस मतलब एक इसका और एक इसका 2 में कन्वर्ट हो जाता है, 2 मोल्स में, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे मोल्स बढ़ रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे तो मोल्स कम हो रहे हैं, है ना, 2 मोल्स एक में कन्वर्ट हो रहा है। हमने प्रेशर बढ़ाया, मोल्स बढ़ गए, रिएक्शन क्या करेगी, अपोज करेगी। रिएक्शन कहेगी मोल्स बढ़ गए हैं, अब इनको खत्म करना है, राइट। सो व्हाट विल हैपन, द रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। क्या होगा, क्विकली क्या आ गया, रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सो वी डोंट हैव टू लाइक गो विद दिस, है ना, है ना। हमने प्रेशर बढ़ाया, बैकवर्ड डायरेक्शन। प्रेशर कम करेंगे तो क्या होगा, मोल्स हो गए कम। रिएक्शन को क्या पता चला, रहे मोल्स कम हो रहे हैं, we have to increase the moles, so what will happen, reaction will shift in forward direction. अनुष्का समझ में आया? हाँ ना, कुछ तो बोलो। अनुष्का है क्या? अनुष्का है नहीं आज। ओके, ध्वनि समझ में आया? आप डाउट नहीं पूछते हो, समझ में आ रही, पढ़ाई हो रही है? ओके गुड, चलो ठीक है। सो दिस इज द ट्रिक, सिंपल है ना। प्रेशर को मोल से देखो और फिर आप बिल्कुल देख लो कि भाई मोल्स बढ़ रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है मतलब मोल्स बढ़ रहे हैं। हमको ऐसा सोचना है कि रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहां मोल्स कम हो जाए, ठीक है। अब ये जो प्रेशर वाली बात है ना, ये इस बात पे भी डिपेंड करती है कि रिएक्शन कौन सी लिखी है। अगर मान लो इसी की जगह मैं ये वाली रिएक्शन लिखूंगा, सेम थिंग आई एम गोइंग टू से, मान लो मैंने ये वाली रिएक्शन लिख दी, N2 + 3H2 gives 2NH3। मैं आगे लिखाऊंगा वैसे तो, लेकिन मैं यहाँ पे तुमसे समझना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कहाँ बढ़े, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, राइट, इस साइड में। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स क्या थे, इधर ज्यादा थे। तो प्रेशर बढ़ाया, मोल्स बढ़ गए, अब रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, उस डायरेक्शन में जहां नंबर ऑफ मोल्स कम है, राइट। So that's why forward reaction will take place. So you can see all these
कॉन्सेप्ट डिपेंड्स ऑन विच रिएक्शन, मतलब हमें याद नहीं रखना है कि प्रेशर बढ़ेगा तो फॉरवर्ड ही होगा या बैकवर्ड ही होगा, आपको देखना है रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन यू हैव टू अंडरस्टैंड, अच्छा पोल्स बढ़ गए तो क्या हुआ, राइट काइंड ऑफ. So I will write a general, let's say, case. We can find in terms of delta ng, that is the general case. So let's say, right now, for general case, what will happen? AA plus BB gives CC plus DD. So I can write KP is nothing but pressure of C to power C. Let's say make it simple. Stoichiometry. No, stoichiometry लिखनी पड़ेगी, sorry. We have to write because we have to write in terms of delta and G. So P is to power PC is to power C, PD is to power D, PB is to power B, and PA is to power A, which is nothing but XC is to power C, XD is D is to power D, XA is to power A, XB is to power B dot P total is to power C plus D minus A plus B. इतना समझ में आ रहा है? ये P total का टर्म इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, है ना? So that is P C plus D minus A plus B. So that is nothing but you can write KP, which is nothing but equals to QP, है ना, at equilibrium. So QP is nothing but you can say XC is to power C, XD is to power D, XA is to power A, XB is to power B into P totals to power delta ng. Or you can, in short, you can say, or I can say QP is proportional to P totals to power delta ng. So it is simple. Now, another way of solving is like this. So if delta ng is positive, है ना, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा, है ना, एग्जांपल लेट्स से PCl5 gives PCl3 plus Cl2, है ना, like that. So if delta ng is positive, on increasing pressure QP will increase and hence backward reaction. On decreasing pressure QP will decrease and hence forward reaction, है ना. ये तो हो गया केस 1. If let's say if delta ng is negative, if delta ng is negative, then QP is nothing but, है ना, 1 upon PT या फिर you can say 1 upon PT square, like that, है ना. PT is to power -1 होगा तो ये नीचे चला जाएगा, है ना, और 1 upon PT क्यूब समथिंग जो भी है, ऐसा कुछ आ सकता है. नेगेटिव है तो -1 डालेंगे तो ये नीचे चला जाएगा. नाउ if you are going to increase the pressure QP will decrease, उल्टा हो जाएगा बिहेवियर. So on increasing pressure QP will decrease and hence forward reaction. On increasing decreasing pressure QP will increase backward reaction. So here lies confusion. थोड़ा सा ध्यान रखना है. Let's say example, N2 plus 3H2 gives 2NH3. So this is the way that you can see QP is nothing but QP is proportional to P is to power delta ng, and then you can relate, okay, what will happen. Another example, you can say
2SO2 plus O2 gives SO3, like that. So here you can see, right, number of moles are decreasing. तो pressure बढ़ाएंगे, right? Pressure बढ़ाएंगे मतलब number of moles बढ़ गए, number of moles बढ़ गए, so that means reaction will shift in that direction where number of moles are going to decrease forward. Clear है? किसी को confusion? तो whatever confusion इसमें कभी-कभी क्या होता है, जल्दी-जल्दी में आता है confusion. अगर आपको मतलब ये अपने दिमाग में बिठा लेना है, अगर आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा है तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती कुछ भी, है ना? लेकिन जिन लोगों को कंफ्यूजन होता है एकदम से, राइट, उनके लिए है बिठा लो अपने दिमाग में, या तो भाई QP इज प्रोपोर्शनल टू P टू पावर डेल्टा NG निकाल के आप कर लो, है ना? क्या आएगा रिलेशन? पॉजिटिव है तो QP इज प्रोपोर्शनल टू P, नेगेटिव है तो QP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, राइट, लाइक दैट. Now if delta NG is 0, case 3, so then what will happen? Delta NG, if it is going to be 0, right? So let's say example, we can say H2 plus I2 gives 2HI kind of reaction. Okay. So what will happen? No effect. No effect at equilibrium. Yes, it will remain at equilibrium. So this is effect of pressure. Now next is effect of volume. इसको लिख लो भाई, जिन्होंने नहीं लिखा, और जिनको कुछ बात नहीं समझ में आ रही है ना, देखो भाई जल्दी जल्दी फिनिश करो. Wait, show me. चलो आगे चलते हैं. अबे इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम चेंज करेंगे तो फिर क्या होगा? तो इफ वी आर गोइंग टू चेंज द वॉल्यूम, तो या तो हम केसी के, देखो वॉल्यूम का टर्म किस में आता है? केसी में, फिर है ना, प्रेशर का टर्म्स केपी में आता था, वॉल्यूम कंसंट्रेशन मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो कंसंट्रेशन आएगा. सो लेट्स से आई एम राइटिंग ए जनरल पहले लिख लेते हैं, बीबी is going to CC plus DD. So QC is nothing but KC at equilibrium, initial equilibrium, है ना? So QC is nothing but KC, or KC is nothing but, we are going to say moles of C divided by volumes to power C, moles of D divided by volumes to power D, moles of, let's say, A divided by volumes to power A, and moles of B divided by volumes to power B. So this is nothing but NC to power C and D to power D. You know?
and a is to power a dot n b is to power b into. If you are going to see, then we can say this is nothing but agar 1 upon b we are going to write. So this is going to be 1 upon b is to power c plus d minus a plus b. Okay, so here what we can understand is QC is inversely proportional to b to power delta ng. So QC is inversely proportional to b to power delta ng. बस simple ये formula बना लिया, right? Q is proportional to p to power delta ng, inversely proportional to v to power delta ng. So we can say hence case 1, say if delta ng is positive, then QC is inversely proportional to B. You know? So okay, that is I have already written. So if delta ng is positive, on increasing volume, QC will decrease, hence forward direction. अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है? इससे जिनको दिक्कत आ रही है ना, वो कहना नो. जिनको नहीं समझ में आ रहा है, जिनको दिक्कत नहीं आ रही है, they are able to understand this concept, it's very easy, say yes, है ना? क्योंकि फॉरवर्ड बैकवर्ड इतनी बार हो रहा है ना, QP KP, आई डोंट नो, जो ध्यान से नहीं सुन रहे हैं उनको प्रॉब्लम आने वाली है. अतुल समझ में आ रहा है? ओके, बहुत ज्यादा है. बहुत ज्यादा नहीं है वो. मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत स्लो और बढ़ा के लिखता हूँ, है ना. दैट कुड बी रिटन इन वेरी फ्यू स्टेटमेंट. सो दैट्स व्हाई मैं चाहता हूँ कि बार बार रिवीजन होता जाए, है ना. दैट्स व्हाई. व्हाट इज जी? जी कहाँ लिखा है मैंने? Ng is gas. अच्छा, moles of gas we are taking all the time. अगर मान लो if delta Ng is positive, ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया. अगर नेगेटिव हो जाएगा, है ना, केस 2, if delta Ng is negative, तो ये b to power -1 -2 आएगा, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा. So on increasing volume, QC will increase and hence backward reach. ये तो हो गए भाई Q वाला मेथड. तो कई लोग Q वाला मेथड रख सकते हैं. और ट्रिक क्या है? केस 3 तो यही है कि अगर if delta Ng is 0, तो no effect. Now we are talking about, अब हम समझते हैं वो जो ट्रिक थी. ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम, ये याद रखना है ना, कि कैसे रिलेट कर रहे हैं उसको. प्रेशर घटेगा मींस मोल विल डिक्रीज. ठीक है, प्रेशर को हमेशा मोल से रिलेट करना है, वॉल्यूम को नहीं, है ना. मेरे को ये मत बोलना PV इक्वल्स टू nRT है तो सर N तो P और B दोनों पे डिपेंड करता है, राइट. सो दिस इज जस्ट फॉर ट्रिक, है ना. प्रेशर से मोल्स को रिलेट करना है. वी आर नॉट गोइंग टू रिलेट विद वॉल्यूम. ठीक है, ये रूट यही रहेगा ट्रिक के लिए. वॉल्यूम से प्रेशर, प्रेशर से मोल्स. तो वॉल्यूम बढ़ रहा है अगर, तो प्रेशर घट रहा है मतलब मोल्स घट रहे हैं. ठीक है, मोल्स घट रहे हैं. तो जैसे अगर मैंने ये रिएक्शन लिखी है, PCl5 gives PCl3 plus Cl2, मतलब अब रिएक्शन को क्या करना है? रिएक्शन को ऐसे डायरेक्शन में शिफ्ट होना है जहां मोल्स बढ़े. वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या है? मोल्स घट रहे हैं एक तरह से डायरेक्ट.
n कांस्टेंट कहाँ होता है? n is number of moles. How it is going to be constant? तुम यहाँ फोकस करो. वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम हुआ, प्रेशर कम हुआ मतलब मोल्स कम हो गए. अब रिएक्शन को क्या करना है? रिएक्शन को ये जो चेंज हो रहा है, मोल्स कम हो रहे हैं, इसको अपोज करना है. तो किधर शिफ्ट होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज इट वांट्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मोल्स. तो यहाँ देख लो, राइट, यहाँ वॉल्यूम, यहाँ डेल्टा एन जी पॉजिटिव है इस रिएक्शन के लिए, वॉल्यूम बढ़ाया, फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो आइदर वे, whichever way you are able to understand. ठीक है. So in one line, hence we can say, hence reaction will shift in that direction where moles will increase. ठीक है, तो ये क्लियर है ट्रिक भी. Okay, now this is effect of volume. तो n कांस्टेंट तब रहता है जब किसी कंटेनर में गैस हो और तुम हीट या कर रहे हो, है ना, तब तुम कंटेनर को चेंज ही नहीं कर रहे हो और कोई रिएक्शन भी नहीं हो रही है, देन ओनली n is going to be constant. आंसर would have told you in thermodynamics. तो कुछ ठीक है, तब बोला होगा कि n कांस्टेंट है. आया याद वेदांत? चलो, ये तो गए थर्ड फैक्टर. फोर्थ फैक्टर है, लेट्स से टेम्परेचर. अब टेम्परेचर से क्या होगा? क्यूपी चेंज होगा या केपी चेंज होगा? तो केपी चेंज हो जाएगा, राइट. सो लेट्स से यहाँ पे केस 1 है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इसमें भी दो लॉजिक है, मैं दोनों समझाऊंगा. फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना, डेल्टा एच इज नेगेटिव ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, K decreases. On decreasing temperature, K increases. ठीक है, ये है केस 1. अब क्या हुआ? अब मान लो वही रिएक्शन है, बट आपने अभी प्रेशर, टेम्परेचर, कुछ प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स नहीं चेंज किए, टेम्परेचर चेंज कर दिया. ठीक है, लेट्स से दिस इज द रिएक्शन ओवर हियर. मान लो N2 plus 3H2 gives 2NH3. Let's say. For this reaction, delta H is negative. ठीक है. So on increasing temperature, K will decrease. K will decrease, hence, है ना, मान लो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, right? I will write like this. At T1 temperature, K1 is nothing but Q. And at T2 temperature, here T2 is greater than T1, K is nothing but K2. And this K2 is going to be less than K1, right? Hence, K2 is less than Q. ठीक है, we have not changed anything, तो K has changed. फिर से लिख रहा हूँ, at T1 मान लो इनिशियली कोई टेम्परेचर पे थे, वहां पे इक्विलिब्रियम पे K1 और Q बराबर थे. अब एकदम से मैंने सडनली उसको हीट कर दिया. हीट किया तो K की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई. K2 has decreased. K2 has decreased. Now K2 is less than Q. K2 अगर लेस देन Q के बराबर Q है तो क्या हो गया? बैकवर्ड रेट. सही है ना? प्रॉब्लम? लिखो लिखो,
बता दो भाई कहाँ से लिखना है। ये तो एक तरीका है ना। और दूसरा तरीका क्या है, यहीं पे समझा देता हूँ। और if I have written delta H is negative, can I write this energy as I can write कि ये energy release हो रही है, so can I write like as a reactant क्योंकि ये produce हो रहा है. I can write N2 plus 3H2 gives 2NH3 plus energy. Can I write like this? Whatever energy is released, मैं ऐसे लिख सकता हूँ. अच्छा, जब भी कभी ये लिखा है इसका मतलब डेल्टा H नेगेटिव है. कई बच्चे ना गड़बड़ी कर देते हैं. जैसे मान लो यहाँ लिखा है 50 के किलो, तो उनको लगता है डेल्टा H की वैल्यू +50 है. नहीं, that this energy is a product, मतलब रिलीज हुई है. So delta H is going to be negative. Do not make mistake, है ना. ये जब यहाँ प्लस देख लिया तो हमने बोला अरे ये तो +50 है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का. बी केयरफुल. अगर मैंने क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एनर्जी, दैट मीन्स, है ना, दैट मीन्स डेल्टा H इज नेगेटिव. हाँ या ना बोलते जाओ यार. यस, है ना. अब एनर्जी जो है एक तरह से रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की तरह समझ लो. अब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ. टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ मतलब एक तरह से एनर्जी दे रहा हूँ. टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ इसका मतलब क्या, एनर्जी दे रहा हूँ. एनर्जी दे रहा हूँ मतलब प्रोडक्ट बढ़ा रहा हूँ, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ, मतलब रिएक्शन की तरफ शिफ्ट होगी बैकवर्ड डायरेक्शन. प्रोडक्ट, है ना, रिएक्शन की तरफ शिफ्ट होगी बैकवर्ड डायरेक्शन. बस इतना है, आसान है. So I'm like increasing energy, like I can relate, and hence backward direction. है ना. Or there is a trick you can remember on increasing temperature. है ना, another way to say, on increasing temperature reaction will always shift in endothermic direction. बस, reaction will always shift in endothermic direction. तो भाई अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो ये एंडोथर्मिक हो गई. टेम्परेचर बढ़ाया, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई. ठीक है, तो यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस. एक तरीका पता चल गया तो दूसरा आप समझ ही सकते हो. टेम्परेचर घटाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन एक्सोथर्मिक डायरेक्शन, राइट. सही है, ये ट्रिक है. तो रिमेंबर, सिंपल सिंपल स्टेटमेंट है ये. तो ये 2-3 तरीके से समझा दिया मैंने. जैसे केस 2 लिखना है, केस 2 लिख लेते हैं. if delta H is positive, ठीक है, so on increasing temperature K will increase, on decreasing temperature K will decrease. ठीक है, so what will happen on increasing temperature, है ना, K2 will be greater than Q and hence forward. या फिर आप समझ लो कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट. So that's why what will happen when you are going to increase the temperature, reaction will shift in forward direction. ये फॉलो हो रहा है भाई, किसी को दिक्कत आ रही है इसमें? So this is approximately 75% people are able to understand. This is a past result. तो 2-3 तरीके बता दिए मैंने एक ही बात को समझने के. या तो आप एनर्जी से देख लो, या फिर आप ये लाइन याद रख लो, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शन will always shift in endothermic direction. ठीक है, लिख लो भाई सब लोग, है ना, जिनको दिक्कत आ रही है, just write it. पहले ये लिख लो, फिर पीछे लिख लेना.
लॉजिक इज टू मिनिमाइज हीट स्ट्रेस, यस यू कैन से दिस। तो जैसे अगर मान लो, है ना, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, रिएक्शन उस बढ़े हुए टेम्परेचर को खत्म करना चाहती है, और टेम्परेचर बढ़ाना नहीं चाहती है, और एनर्जी रिलीज नहीं करना चाहती, और रिएक्शन लेट्स से एक्सोथर्मिक है, तो फॉरवर्ड में तो जाएगी नहीं, क्योंकि फॉरवर्ड में जाएगी तो और एनर्जी रिलीज हो जाएगी, तो क्या होगा, बैकवर्ड में। इसीलिए मैंने बोला ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शन विल ऑलवेज शिफ्ट इन एंडोथर्मिक डायरेक्शन। आप जो भी डायरेक्शन हो वो आप देख लो कि वो फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है, एंडोथर्मिक किस डायरेक्शन, ठीक है। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो अपोजिट एंडोथर्मिक होगा, रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन ही एंडोथर्मिक हो गई। सिंपल हो गया, बहुत ही सिंपल हो गया, ठीक है, एक लाइन में। So all these three things are saying the same thing. इसको पीछे लिखना था, चले आगे। अरे आ रहे हैं हमें, तुम्हें आ रहे हैं, एक और केस है। मान लो रिएक्शन में एक और केस है, फिफ्थ, एडिंग इनर्ट गैस। So this is fifth, addition of inert gas. अब जैसे मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि लेट्स से दिस इज 2SO2 प्लस O2, जस्ट लिसन, है ना, अभी लिखना नहीं है इस वाली बात को, लिखना नहीं। ये मान लो 2SO2 प्लस O2 इज गिविंग 2SO3। अब मैंने यहाँ पे O2 का सोर्स जो है ना वो एयर ले लिया। लेट्स से मैं जब ये रिएक्शन करा रहा हूँ तो मैंने स्पेसिफिकली ऑक्सीजन ना लेके एयर ले ली। एयर लूंगा तो क्या होगा, जितना ऑक्सीजन होगा उसका 4 गुना वॉल्यूम में लेना, नाइट्रोजन भी आएगा। सो दिस नाइट्रोजन इज ऑल्सो प्रेजेंट, but this is not participating in reaction, so this N2 is going to behave as inert gas। समझ में आई बात ना। N2 के होने से प्रॉब्लम क्या है वो हम समझते हैं, ठीक है। सो दिस इज एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एक तरह से हो गया कि कोई ऐसी गैस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं कर रही है बट वो प्रेजेंट है वहां पे, तो उसके होने से क्या हो जाएगा वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। उसमें दो आते हैं, एक तो होता है ये जो हम ऐड कर रहे हैं इनर्ट गैस, ये या तो कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करेंगे या कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, आइदर कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम। पहले समझ लेते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम। ऐड कांस्टेंट वॉल्यूम, से दिस इज केस 1, ठीक है। सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपने वॉल्यूम फिक्स कर दिया। क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 से O2 पे कोई फर्क पड़ रहा है मोल्स पे? नहीं, क्योंकि वो तो वैसे ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहा ना N2। So the concentration of reactant and products are not going to change at constant volume. At constant volume, the concentration of reactant and products are not going to change। इतनी बात समझ में आ रही है? वॉल्यूम वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मोल्स तो चेंज, हम ना तो हम रिएक्टेंट के मोल डाल रहे हैं ना प्रोडक्ट के मोल डाल रहे हैं, तो मोल्स चेंज नहीं हुए। सो दैट्स व्हाई द कंसंट्रेशन इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट एंड हेंस नो इफेक्ट। सो at constant volume addition of inert gas has no effect, inert gas has no effect, so be careful constant volume पे, है ना। as concentration of reactant and product will
remain constant. Now case 2, एट कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम मान लो ऐड कर रहे हैं तो प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, सो द कंसंट्रेशन विल चेंज। करेक्ट है ना भाई, प्रेशर कांस्टेंट है, मोल्स आपने बढ़ाए है ना, राइट। समझते थोड़ा, मान लो ये है ना 3 गैसेस थी, SO2 O2 है ना, दिस इज फॉर्मिंग SO3, लेट्स से, जस्ट इमेजिन। अब इस कंटेनर का मैंने वॉल्यूम चेंज नहीं किया, वॉल्यूम चेंज नहीं किया तो इसकी है ना, इसकी कंसंट्रेशन ना तो O2 की कंसंट्रेशन चेंज हुई, ना SO2 की हुई, ना SO3 की हुई, बाय एडिशन ऑफ एयर, है ना। तो N2 के आने से कुछ नहीं हुआ, राइट। सो द कंसंट्रेशन हैज नॉट चेंज, दैट्स व्हाई देयर इज नो इफेक्ट। बट अब मैंने कहा कि मैंने यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रखा है, अब मैंने प्रेशर कांस्टेंट रखा है। मान लो यहाँ पे प्रेशर पहले 2 ATM था, मैं ऐड कर रहा हूँ, है ना, मैं ऐड कर रहा हूँ, तो ऐड करने के कारण क्या होगा, प्रेशर अगर कांस्टेंट हुआ, नंबर ऑफ मोल्स तो बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम इज चेंजिंग, ठीक है। So now you can understand at constant pressure, addition of inert gas is going to increase the volume. So there is never is going to be any chance कि वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा नहीं, है ना, वॉल्यूम बढ़ेगा ही बस, right? We can write that, and then we know the relation between Q and volume, मैंने पढ़ाया, right? At constant pressure, on addition of inert gas will increase volume, and we know Q is inversely proportional to 1 upon V to power delta Ng. Now you can write. So if delta Ng is positive, यहाँ वॉल्यूम घटने का चांस नहीं है ना, वॉल्यूम विल इंक्रीज, है ना, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, Q will decrease then forward. If delta Ng is negative, volume will increase, है ना, so ये क्या हो जाएगा, Q will increase backward. कितना आसान है, right? And if delta Ng is 0, so no effect was. So that is the, है ना, effect of addition of inert gas. समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, ली चैटलेट प्रिंसिपल से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूँ। तो अगर हम देखेंगे तो अगर कायदे से देखा जाए तो 3-4 फॉर्मूले हैं। जब भी हम कंसंट्रेशन डाल रहे हैं तो सिंपल है, रिएक्टेंट डाला फॉरवर्ड, प्रोडक्ट डाला बैकवर्ड, रिएक्टेंट हटाया, देन रिएक्टेंट हटाया, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट डाला, एक तरह से आप ऐसा समझ सकते हो, रिएक्टेंट हटाया, राइट। सो बैकवर्ड, प्रोडक्ट हटाया, फॉरवर्ड, ठीक है। तो जो भी आप डाल रहे हो उसके हिसाब से आप देख लोगे, और जो हटा रहे हो उसके हिसाब से देख लोगे। दूसरा है प्रेशर में, तो Q इज प्रोपोर्शनल टू P टू पावर डेल्टा Ng। तो अकॉर्डिंग टू डेल्टा Ng यू कैन से कि Q क्या होगा, आगे बढ़ेगा पीछे बढ़ेगा, या फिर यू कैन अप्लाई कि प्रेशर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हो। सो व्हाटएवर वन लॉजिक, जस्ट रिमेंबर वन लॉजिक प्रॉपर्ली, ठीक है। वॉल्यूम अगर होगा तो हमें पता है Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V टू पावर डेल्टा Ng, एंड व्हाटएवर विल हैपन अकॉर्डिंग टू डेल्टा Ng वी कैन से। टेम्परेचर के लिए एक ही लाइन याद रखनी है, रिएक्शन विल ऑलवेज शिफ्ट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, रिएक्शन विल ऑलवेज शिफ्ट इन एंडोथर्मिक डायरेक्शन। बस हो गया आपका ली चैटलियर प्रिंसिपल, 4-5 लाइन में ऐसे फिंगर टिप्स पे खत्म। वॉल्यूम कैन नॉट डिक्रीज ना, एडिंग इनर्ट गैस का मतलब क्या हुआ, आपने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दिए, गैस के नंबर ऑफ मोल्स बढ़े तो वॉल्यूम घट सकता है क्या? प्रेशर कांस्टेंट है, मोल्स बढ़ा रहे तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना। वेदांत अंचलेकर अंचलकर, समझ में आया ना? बस तो वॉल्यूम बढ़ना ही है, घटेगा नहीं, घटने का चांस नहीं है ना, इसलिए कंफ्यूज ही नहीं होना है उसमें। अच्छा
ये तो हो गया। अब समझते हैं थोड़ा और। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। सो नो इफेक्ट है ना, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट। हाँ, अगर डेल्टा एन जी निगेटिव है तो क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है Q, लेट्स से Q इज प्रोपोर्शनल टू बी टू पावर -2, तो हम इसको ऊपर लेके बी स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, तो बी बढ़ेगा तो Q भी बढ़ेगा। तो नहीं आना। तो लेट्स से इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, नो इफेक्ट। चलते हैं थोड़ा और आगे। सो दिस इज कॉल्ड फेवरेबल कंडीशन फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस। You just don't need to remember the temperature and pressure condition. You just have to remember, okay, what is going to be temperature and pressure, high or low पे क्या होगा kind of. So पहले तो first है Haver's process. Haver's process, manufacturing of ammonia. अच्छा, अमोनिया का यूज कहाँ होता है मेनली, व्हाई अमोनिया इज इम्पोर्टेंट, कौन बताएगा? सर फर्टिलाइजर के मैन्युफैक्चरिंग में इम्पोर्टेंट होता है काफी। करेक्ट। सो अमोनिया इज very important, used as refrigerant, fertilizer, है ना, and ammonia is also ammonium salt. Some ammonium salts are used in explosive also, manufacturing of explosive. So all those things. हाँ ठीक है। So ammonia बहुत important है, right? So manufacturing of ammonia when we are doing N2 plus 3H2, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि नाइट्रोजन जो है ना वो थोड़ा इनर टाइप की गैस है, मतलब ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर लेती है। So for that we are adding some catalyst, है ना, ताकि आसानी से रिएक्शन हो जाए, Fe and molybdenum like that. For this reaction delta H is negative. Now the problem is when the delta H is negative, that means this reaction is exothermic and this reaction is endothermic, right? So whenever I will say temperature बढ़ाओगे तो आप कहोगे रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, राइट राइट। बट रूम टेम्परेचर पे, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब यह है कि एक सर्टेन लेवल के बाद बढ़ाओगे, पहले रिएक्शन भी होनी चाहिए ना। तो रूम टेम्परेचर पे N2 और H2 आपस में रिएक्ट कर ही नहीं पाते हैं। सो व्हाट विल हैपन टू, क्यों नहीं कर पाते हैं, थोड़ा इस पे भी समझते हैं। क्यों N2 जो है वो इनर्ट है, केमिकल बॉन्डिंग में आया होगा ये। N2 में ना ये 3 बॉन्ड होते हैं, है ना, ट्रिपल बॉन्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। अब रिएक्ट करने के लिए पहले इसको आपस में एक दूसरे को छोड़ना पड़ेगा, एंड इट रिक्वायर्स अ वेरी हाई एनर्जी, है ना, इस बॉन्ड को तोड़ने में, तब जाके फिर आप रिएक्शन हो पाएगी। सो दैट्स व्हाट हैपन कि रूम टेम्परेचर पे ये N2 इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कि इतना ऑप्टिमम टेम्परेचर तो हम डाल दें, है ना, कि आपका इक्विलिब्रियम आ जाए। तो उसको हम बोलते हैं दैट इज नॉट वेरी हाई टेम्परेचर, दैट इज नॉट वेरी लो, मीडियम टेम्परेचर। सो हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे, है ना, अभी जैसे मैं बोलूंगा कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड में जाएगा, लेकिन बढ़ाएंगे कब से, ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद बढ़ाएंगे। वो ऑप्टिमम टेम्परेचर आता है 500 केल्विन पे, ठीक है। तो 500 केल्विन के बाद बढ़ाओगे तब ये बैकवर्ड में जाएगा, लेकिन 500 ना, अभी क्या होगा, तब तक तो फिर N2 रिएक्ट करना स्टार्ट करेगी, राइट। सो देन दैट टाइम, है ना, ये याद रखना है थोड़ा सा, ये कॉन्ट्र अपोजिट है ना नेचर। So here you have to remember the favorable conditions are
टेम्परेचर जो है optimum at 500 Kelvin, or you can say medium temperature. It's not very high. And pressure, अब बताओ भाई प्रेशर में आप लोग मुझे बताओ, ठीक है, डेल्टा एन निकाल के अपना अपना बताओ क्या होगा। बताओ, आंसर ही नहीं आ रहा किसी का। फॉरवर्ड बैकवर्ड क्या होगा, मतलब फेवरेबल कंडीशन का मतलब है वी वांट फॉरवर्ड रिएक्शन। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जा रही होगी, प्रेशर बढ़ाने पे जा रही होगी या फिर प्रेशर घटाने पे जा रही होगी। ठीक है, तो हाई प्रेशर चाहिए होगा, राइट। सो वी नीड हाई प्रेशर, and that pressure is approximately 200 to 400 bar or atm। ठीक है, so at high pressure this reaction will happen। क्यों, either you can according to number of moles समझ सकते हैं, प्रेशर बढ़ाएंगे है ना, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, रिएक्शन विल शिफ्ट, जहां पे मोल्स कम हो रहे होंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो दैट्स हाउ वी आर सेइंग फेवरेबल कंडीशन। अच्छा, दूसरा contact process, that is 2SO2 plus O2 है ना, in terms of let's say this is going to give you 2SO3, right, in presence of V2O5। let's say this is also delta H is negative, so be careful। I can write like this also, let's say I have written let's say plus 45.2 kilocalorie per mole, let's say। So then you have to understand this is not delta H positive, this is delta H negative, right। फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, तो क्या होगा, लो टेम्परेचर। प्रेशर क्या होगा, प्रेशर क्या रखना पड़ेगा हमें, लो या हाई, हाई प्रेशर रखेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है ना, कम की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है कम की तरफ जाएंगे, राइट। रिएक्शन विल ट्राई टू डिक्रीज द नंबर ऑफ मोल्स, सो दिस इज आल्सो हाई प्रेशर, सेम। है ना, प्रेशर बढ़ाने पे क्या हुआ, यहाँ पे ये देखो ना, है ना, इधर 3 है इधर 2 है, राइट। तो प्रेशर बढ़ाएंगे मतलब नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, अब हमें रिएक्शन ऐसे शिफ्ट करनी है कि नंबर ऑफ मोल्स कम हो सके, सो फॉरवर्ड। टेम्परेचर एक्चुअली क्या है, यहाँ ये एक्सेप्शन है, N2 रिएक्ट नहीं करती है ना, तो यू नीड 500 केल्विन, वहां जाके उस टेम्परेचर पे ही जाके N2 के बॉन्ड्स सफिशिएंटली ब्रेक हो रहे होते हैं और तब रिएक्शन हो पाती है। सो दैट इज ए डिफरेंट लेट्स से रीजन। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल ये है कि अगर आप ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है उसके ऊपर अगर आप जाओगे, मान लो मैं 600 केल्विन पे बात करूं, तो फिर मैं कहूंगा कि जो क्या होगा वहां पे इक्विलिब्रियम जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने लग जाएगा, क्योंकि क्योंकि रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। तो अगर आप टेम्परेचर 500 केल्विन से भी ऊपर लेके जा रहे हो तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। बट 500 डिग्री सेल्सियस, 500 केल्विन सॉरी, 500 केल्विन इज आल्सो ए क्वाइट हाई टेम्परेचर, right। but the reason is over here why we are saying कि 500 केल्विन चाहिए, क्योंकि N2 उस पर रिएक्ट नहीं करती है lower temperatures पे। so that's why I have written optimum or I have written medium temperature, ठीक है, that is going to be 500 Kelvin। and let's say third is let's say Work-Land-Eyed process, and that is N2 plus O2 forms NO।
दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी तो समझाया हाई प्रेशर का मतलब क्या है। हम चाहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट हो, हम चाहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट हो। प्रेशर बढ़ाने का मतलब क्या है, अगर रिएक्शन में प्रेशर बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ाने का मतलब मोल्स बढ़ गए, एक तरह से मोल्स बढ़ गए तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, जहां मोल्स कम हो। तो मोल्स कम कहाँ हो रहे हैं, 4 से 2 बन रहे हैं ना फॉरवर्ड में, इसलिए हाई प्रेशर। तो यहाँ पे N2 + O2 gives 2NO, तो डेल्टा Ng 0 है, तो प्रेशर का रोल नहीं है इसमें, किसका है, टेम्परेचर का। सो फेवरेबल कंडीशन क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर। तो पहले क्या होता था, है ना, दिस ओस्टवॉल्ड प्रोसेस से पहले HNO3 मैन्युफैक्चरिंग के लिए, राइट, HNO3 मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे पहले NO बनाना पड़ता है। तो पहले जो फर्स्ट मेथड थी, दिस इज आई थिंक लेड चैम्बर प्रोसेस, लेड चैम्बर प्रोसेस। इसमें क्या था कि N2 और O2 मिलके NO बनाते थे। N2 रिएक्टिंग मतलब नॉन रिएक्टिंग है, इनर्ट टाइप की है। ऑक्सीजन और N2 आपस में रूम टेम्परेचर पे नहीं रिएक्ट करते। ये कब रिएक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में, कभी कभी जब लाइटनिंग वगैरह होती है ना, तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे करते हैं, अराउंड 2000 केल्विन समथिंग, ठीक है। तो उस टेम्परेचर पे जाके ये दोनों रिएक्ट करके NO बनाते हैं, फिर वो NO से फिर HNO3 बन रहा था। तो अभी जो हमारे पास ओस्टवॉल्ड मेथड है उसमें तो उसमें NH3 से बनाते हैं, है ना, NH3 + O2 is going to form NO and H2O like that। तो वो प्रोसेस से पहले ये वाली प्रोसेस फॉलो होती थी, और इसमें बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए था, क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा H is positive, so that means you need more temperature, higher temperature for this reaction to proceed। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, ये तो है ली चार्टलेट प्रिंसिपल। थोड़ा सा हमें साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम बताना है, थोड़ा फिजिकल इक्विलिब्रियम की बातें बतानी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो अब आप पूरा अच्छे से लगा लो, है ना, एक्सरसाइज 1 और क्या कहते हैं, जो विंडोज टू जेई मेन है वो पूरा करना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एंड विंडोज टू जेई मेन ढंग से कर लो। जिन लोगों ने नहीं किया उनके पास अभी भी टाइम है, क्योंकि ये चैप्टर के बाद आयनिक स्टार्ट होगा, और आयनिक इज बेस्ड ऑन दिस, है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम, काफी कुछ इस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्लास जो है वो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पे है, एंड दैट इज वेरी वेरी यूजफुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आयनिक इक्विलिब्रियम आल्सो। तो थोड़ा सा उस पे आप ध्यान रखना, क्लास टाइम पे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास के बाद, या देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में टाइम मिलेगा तो करेंगे। हेलो हाँ, सर, बर्कलैंड हाइट प्रोसेस के लिए फेवरेबल कंडीशंस में प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई ना? डेल्टा Ng 0 है ना, हाँ। तो नो इफेक्ट, अच्छा, प्रेशर से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ 2 हैं और यहाँ पे भी 2 हैं, ओके सर, 2 मोल खत्म हुए, 2 मोल बन गए, क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं। ओके सर, समझा। थैंक यू सर। ओके, ओके, चलो, ओके, दैट्स इट। किसी को कुछ पूछना है, और आई एम क्लोजिंग, ठीक है, देन बाय।